Hello dear students, today I am here to explain you linear programming. Actually, I want to explain you this particular chapter in the most simplest manner so that you can answer the MCQs in the best possible way. Okay, तुम्हें ज़रा भी mistake नहीं करना है MCQs answer करते वक्त. Linear programming, first of all, I will come to the example that I have taken for you all to make the chapter more simple. सपोज हमारे पास एक बिजनेस ए है एंड मैं सपोज वो बिजनेस ए का नाम ले लेती हूँ. एक रेस्टोरेंट है मेरे पास, ठीक है. अगर मेरे पास रेस्टोरेंट अगर है तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? माय मेन ऑब्जेक्टिव विल बी व्हाट? टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट. मुझे क्या करना है? मैक्स टू मैक्स मेरा रेवेन्यू होना चाहिए, मेरा मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट होना चाहिए. वो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा. ओके. एंड और क्या ऑब्जेक्टिव हुआ कि मेरा जो रॉ मटेरियल्स का खर्चा है, ओके, वॉट एवर कॉस्ट आई एम इंकरिंग टू पे द लेबर, ओके, दिस ऑल एक्सपेंसेस शुड बी अप टू अ मिनिमम एक्सटेंट. कम से कम मेरा खर्चा होना चाहिए, कम से कम मेरा टाइम यूटिलाइज होना चाहिए प्रोडक्शन के लिए. ओके, so in that case I will be naturally a good revenue maker and profit maker, right? The same thing is being explained in the form of a sentence about linear programming. Linear programming क्या बताता है? वो टेक्निक बताता है कि हम किस तरह से हमारे लिमिटेड जो रिसोर्सेस है इन द फॉर्म ऑफ लेबर और वी कुड से रॉ मटेरियल या फिर है अपना टाइम हार्स, हम क्या करेंगे? बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करेंगे, बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे. किस लिए? ताकि हमें रेवेन्यू ज़्यादा मिले, प्रॉफिट ज़्यादा मिले, हमारा कॉस्ट जो है, खर्चा जो है, हमें कम हो जाए और हमारा टाइम कंजम्पशन भी कम हो जाए. ओके, सो अगेन आई विल जस्ट गो थ्रू द सेंटेंस. लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? ये टेक्निक है जो कि बताता है कि हम किस तरह से यूटिलाइज करें हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को. ओके, ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट और रेवेन्यू मिले और हमारा कॉस्ट और टाइम मिनिमम से मिनिमम यूटिलाइज हो. ओके, so in this slide I'm going to explain you the same concept with the help of an example. Okay, the example is about a company which produces three products. Now what are that particular three products? Product A, product B and product C. And for producing these three kinds of products, we are using three kinds of raw materials. They are L, M and N. Okay. So the company A is producing three kinds of products A, B, C, for which they are using three kinds of raw materials, that is L, M, N, for which they have provided us profit, that how much profit they are earning for each kind of product. प्रोडक्ट ए के लिए उनका प्रॉफिट है ₹4, प्रोडक्ट बी प्रॉफिट इज ₹5, प्रोडक्ट सी ₹7. Now if we just have a look at this particular small data that they had provided. They had provided this data regarding the consumption of raw material by product A, B and C. The quantity of raw material that they are using. Okay, from L, from M and from N. We'll have a look. Product A is using raw materials only of M and N. Product B is using raw material of L as well as M. Product C is using all the three kinds of raw materials, that is L, M and N. Now after this, come to the next point. What it says? Maximum raw materials availability. It means हमारे पास constraint है, some limitation है. किसका limitation है? Raw materials का. Because वो क्या बोल रहा है? Maximum raw material. मतलब इससे ज़्यादा raw material हमारे पास है ही नहीं. Okay? L का 100 units ही है, M का 120 units ही है, N का 150 units ही है. We don't have more raw materials rather than this much. Okay, so this is what? This is our limitation. This is our constraints.
Now we will talk about the basic terminologies that we are going to use, okay, to deal with LPP problems. There are decision variables. What are these decision variables? Decision variables depends upon the quantity that they are going to produce from A, from B, from C. Since we don't have it in numeric form, है ना, हमें नंबर के फॉर्म में उसने कुछ दिया नहीं है कि A का कितना यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, B का कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, C का कितना यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं दिया प्रॉब्लम में. सो इन दैट केस हम क्या एज्यूम करेंगे कि सपोज ए का टोटल उन्होंने x1 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, ओके, बी का टोटल उन्हें कितना x2 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, सी का टोटल उन्हें x3 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है. दे डोंट हैव द numeric amounts of this particular three products that how much they should produce. Now come to the next, that is objective function. Objective function is what? Just in this previous slide we had seen our objective is to maximize profit and as well as what? To maximize the revenue. Depends upon the problem what they had provided to us. Over here they had provided us profit, right? So therefore we will see to look to have maximum profit for product A, B and C. Naturally each and every company क्या चाहता है कि उसका max to max profit हो, तो किस proportion में क्या produce करेगा तभी उसका maximum profit होगा. That we are going to find out. To find out that we have to solve it in mathematical manner. For that what they had done, they had written maximum of Z. This maximum of Z is nothing but maximum of profit they are going to earn out of this particular three products. Okay. Now maximum profit from A will be 4x1 क्योंकि x1 A का quantity है. Okay. 5x2 क्योंकि x2 B का quantity है. 7x3 क्योंकि x3 C का quantity है. Right. जब हम इन तीनों को भी ऐड करेंगे, तीनों को भी टोटल प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे तभी हमें मिलेगा दी टोटल प्रॉफिट ऑफ द होल प्रोडक्शन ऑफ ऑल द काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट. जैसे कि यहाँ पर दिया है 4x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3. क्या ये 4x1 A का प्रॉफिट है, 5x2 B का प्रॉफिट है, 7x3 C का प्रॉफिट है. तीनों को भी प्रॉफिट को ऐड करेंगे तभी हमें मिलेगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट इस फॉर्म को कितना अर्न होगा, राइट. व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स? कंस्ट्रेंट्स वी हैड टॉक्ड ऑलरेडी अबाउट दैट. एल का मेरे पास 100 यूनिट्स ही है, एम का 120 ही है, एन का 150 ही है, उसके ज्यादा मेरे पास यूनिट नहीं है. सेम थिंग इज बीन रिटन ओवर हियर कि एल का टोटल 100 ही है, एम का टोटल 120 है और एन का टोटल 150 है. अगर इतना ही यूनिट्स है तो इससे ज्यादा हम यूनिट्स यूज ही नहीं कर सकते प्रोडक्ट ए बी सी के लिए, राइट. या तो उससे कम रॉ मटेरियल यूज होगा या तो इक्विवेलेंट टू 100 यूज होगा. इन केस ऑफ रॉ मटेरियल एल, रॉ मटेरियल एल के लिए विल गो टू दिस पर्टिकुलर टेबल दैट दे हैड प्रोवाइडेड टू अस. फॉर product A they are not using raw material L. For product B and C they are using raw materials, right. So in that case 20x2 क्योंकि x2 का क्वांटिटी है, ओके, 30x3 क्योंकि C का वो क्वांटिटी है, राइट. ये दोनों भी रॉ मटेरियल्स को प्लस करने के बाद में या तो वो इक्वल टू 100 हो जाएगा, ओके, या तो वो इक्वल टू 100 हो जाएगा क्वांटिटी, ओके, या तो वो लेस देन 100 होगा, राइट. क्योंकि उससे ज्यादा मेरे पास रॉ मटेरियल से नहीं यूज करने के लिए, आई हैव ओनली 100, तो या तो लेस देन में यूज करूंगी रॉ मटेरियल्स एल का या तो 100 यूनिट्स ही यूज करूंगी टोटली. सेम थिंग विथ एम. एम के लिए now for this particular raw material M, it is being used by
all the three products, that is A, B and C. सो M के लिए क्या हो जाएगा 30, लेकिन इसका क्वांटिटी कितना है x1, तो 30 x1 प्लस 40, B का क्वांटिटी कितना है x2, सो इट विल बी 40 x2 प्लस 20, C का क्वांटिटी कितना है x3, सो इट विल बी 20 x3. तो इन तीनों को प्लस करने के बाद में इट कांट बी मोर देन 120, इट शुड बी लेस और अगेन इक्वल टू, है ना, या लेस होना चाहिए या तो इक्वल टू होना चाहिए, उससे ज्यादा हम यूज ही नहीं कर सकते हैं. गेटिंग इट? सो दिस आर व्हाट, दिस आर कंस्ट्रेंट्स, रेस्ट्रिक्शंस, कि इससे ज्यादा मेरे पास रॉ मटेरियल्स ही नहीं यूज करने के लिए. सो दैट्स व्हाई दिस साइन विल बी लेस देन और इक्वल टू. सेम थिंग विथ योर एन. ठीक है, एन के लिए बी प्रोड्यूस करने के लिए वी आर नॉट यूजिंग रॉ मटेरियल एन. ओके, सो दैट्स व्हाई एन के लिए क्या हो जाएगा 60 x1 प्लस इट विल बी 40 x3, राइट. प्लस किया, इट कांट बी ऑफ कोर्स मोर देन 150, सो इट शुड बी इक्वल टू और लेस देन 150. ओके, इक्वल टू और लेस देन 150. इट कांट बी मोर देन इट ना, इट शुड बी इधर लेस देन और इक्वल टू 150. इससे ज्यादा मेरे पास रॉ मटेरियल्स ही नहीं है. So what are the terminologies that we had learned now is that decision variables, which is nothing but the number of quantities that we are going to produce. Objective function, which is nothing but what, maximum of profit that we are going to earn out of the production of all kinds of product that we are producing, that is A, B and C. ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट को इंडिकेशन कैसे दिया गया, मैक्सिमम ऑफ z. देन वी हैव कंस्ट्रेंट्स. कंस्ट्रेंट्स इज नथिंग बट द लिमिटेशन, कि इससे कम हम रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं या तो इक्वल टू. मोर देन दिस वी कांट यूज ओनली, क्योंकि इससे ज्यादा रॉ मटेरियल्स मेरे पास है ही नहीं. दैट्स इट about the example. Same example we are going to see within 1 minute. Just we have to have a look at the terminologies. I taught you about the decision variables. It is what notation used for decision variables x1, x2, x3. Okay, and they all are what, interdependent variables. ठीक है, interdependent variables कैसे, अगर मुझे ऐसा लगा आफ्टर द होल कैलकुलेशन दैट प्रोडक्ट ए मुझे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, तो ठीक है, प्रोडक्ट ए का हम ज्यादा प्रोडक्शन कैरी आउट करेंगे. अगर इसका प्रोडक्शन ज्यादा अगर हो रहा है देन ऑटोमेटिकली x2 का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि इसके रॉ मटेरियल्स इसमें कंज्यूम हो जाएंगे. ओके, सो इट मीन्स व्हाट, दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ओके, if resources are increased by 100%, profit will increase by 100%. okay, इक्वल टू हमने देखा था ना, 100 अगर रॉ मटेरियल्स है तो 100 का 100 तक प्रॉफिट जा सकता है, दैट वे. सो इट मीन्स व्हाट, अगर रिसोर्सेज 100% इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट भी 100% इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस ऑल आर डिसीजन वेरिएबल्स. ओके, दे आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. ठीक है, सिंस इन द लास्ट प्रॉब्लम we were dealing about 3 kinds of products. So over there we could say that they are dependent on the products. Decision variables are dependent on the product. But if suppose a firm is providing service, for example Bajaj is providing some services, then over there we are going to take the decision variables in the form of services. Okay, objective function is what, to maximize the profit or revenue or sales. So for that our indication will be what, maximum of z. लेकिन अगर प्रॉब्लम में कॉस्ट और टाइम के बारे में बोला है then it will automatically get converted to minimum of z. okay, अगर मिनिमम कॉस्ट या फिर मिनिमम टाइम दिया है then ऑटोमेटिकली इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ z. हम कॉस्ट और टाइम को कैसे इंडिकेट करेंगे, z से. सिंस कॉस्ट और टाइम हमारा हमेशा मिनिमम होना चाहिए, दैट्स व्हाई इट विल बी मिनिमम ऑफ z.
Okay. I'd indicated the same thing in the form of an example. Profit per unit for product A is 3000, product B is 2000, product C is 5000. So let the number of products of A be x1, B be x2 and C be xc. So in that case your total profit will be what? 3000 x1 plus 2000 x2 plus 5000 x3. दिस विल बी व्हाट योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कि मेरा टोटल प्रॉफिट ये सबको मिला के मिलेगा, सारे प्रोडक्ट्स के प्रॉफिट को मिला के मुझे टोटल प्रॉफिट मिलेगा. ओके, व्हाट आर दिस कंस्ट्रेंट्स वी हैड लर्न? लेस देन और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू, और इक्वल टू. It depends upon the problem what they are providing. Constraints are these: hurdles, limitations. Okay, जिसके आगे हम नहीं जा सकते. I hope you have understood very well about the linear programming. Okay, just have a look once more if you feel that there is requirement to see. But according to me, once if you will see the whole video thoroughly, it will be very clear what exactly LPP is. Okay, don't get tense, just be relaxed and listen to the whole video in a very cool mind. Don't forget to subscribe this channel for more logical thinking.